تو ان سے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہیں ہمارے شیطانی کا تاج ہمارے سر سے اتار کے ذخیرہ اندوزوں کے سر پہ نہ رکھ دیا جائے، اور مجھے تو آپ کو کیا؟ ارے بتائیں نا. مجھے ڈی گریڈ کر کے ان کا چیلا بنا دیا جائے اور وہ میرے گرو بن جائیں. یہ آپ کے چیلے اس لیے نہیں بن سکتے کیونکہ یہ آپ کا حکم مانتے ہیں. ذخیرہ اندوزوں کو تو میں نے آسکر ایوارڈ، نگار ایوارڈ، پلیٹینم ایوارڈ، پتہ نہیں کون کون سے ایوارڈوں سے نواز چکا ہوں. ہر ایوارڈ لے چکے ہیں ذخیرہ اندوز اس ملک میں. مجھے پتا ہے کہ میں جس کو اصلاح کر رہا ہوں، جن کو یہ نصیحتیں کر رہا ہوں، ان لوگوں نے کبھی بھی اس پر عمل نہیں کرنا ہے. آپ کو کیسے پتا کہ ان لوگوں نے اس بات پر کبھی بھی عمل نہیں کرنا؟ جب میں رمضان میں قید ہوں تو اس بات پہ عمل نہیں کر رہے، جب میں آزاد ہو جاؤں گا تو پھر کیسے اس بات پہ عمل کریں گے؟ اسی بات پہ مجھے ہنسی آتی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست مہک نور. آپ کے ہمارے من پسند پروگرام جس کا نام ہے میرا سوال ٹیڑھا جواب میں. میرے اس پروگرام میں بہت سارے مہمانوں سے آپ کی ہوتی ہے ملاقات، اور آج ہمارے اس پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں جنہیں ہم نے بلایا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر کے نیکی کے راستے سے ہٹا کر بدی کے راستے پر لگانے کے لیے ہر وقت مصروف عمل نظر آتے ہیں. یقینی طور پر آپ تمام لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں مسٹر شیطان. مسٹر شیطان کہہ کے میں بلا انہیں کیوں اتنی رسپیکٹ دے رہی ہوں؟ میرا مطلب ہے چل ہٹ شیطان، جو لوگوں کو بناتے ہیں بے ایمان. میرے جتنے بھی کیمرہ مینز ہیں اور ٹیم کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سے میں صرف یہی کہوں گی کہ لا حول ولا قوت کوئی بھی نہ پڑے، ورنہ وہ مسٹر شیطان ہو جائیں گے غائب اور ہمارا پروگرام رہ جائے گا ادھورا. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. میرے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں انہیں سلام کروں، نمستے کروں، ست سری اکال کروں یا پھر کیا کہوں، لیکن کہہ دیتی ہوں ویلکم ٹو دی شو. ہیلو، ویلکم ٹو دی شو مسٹر شیطان. آپ نے سارا الزام مجھ پہ رکھ کر اپنے لوگوں کو کس صفائی سے بچایا ہے؟ ایسے بچایا ہے جیسے کوئی بلی اپنے چھوٹے بچے کو بلے سے بچاتی ہے، جیسے کوئی چڑیا اپنے انڈوں کو کووں سے بچاتی ہے، اس طرح بچایا ہے آپ نے. یہ تو پھر بھی بچا لیتے ہیں نا. آپ کے شہر میں کوئی بھی جائے وہ تو باہر آ ہی نہیں سکتا جناب. اگر کوئی بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، اور کوئی نہ بچنا چاہے تو ہمارے جال میں پھنس کے ہمارے سکنجے میں کس جاتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ آپ کچھ نہ کریں، بس میرے سوالوں کے جواب دیں. آپ لوگوں کو گناہوں میں کیوں پھنساتے ہیں؟ یہ سوال میں آپ سے کروں کہ یہ لڑکیاں لڑکوں کو کیوں پھنساتی ہیں؟ ایک موبائل کیوں لیتی ہیں؟ لوگوں سے اتنا ایزی لوڈ کیوں کرواتی ہیں؟ وائی؟ کیوں پھنساتی ہیں؟ وہ جناب اصل میں ہم لڑکیاں ہیں نا، اور ہم لڑکیوں کو 4 شادیاں کرنے کی تو اسلام نے اجازت دی نہیں ہوئی، اسی لیے ہم 4 عشق کر کے اس کمی کا ازالہ کر لیتی ہیں. 4 نہیں 400 عشق کرتی ہو، 400، اور ہر نیٹ ورک پہ 100 عاشق تم نے پھنسائے ہوئے. اسٹاپ پہ الگ، کالج میں الگ، اسکول میں الگ، شادی بیاہ میں الگ. ہم جو بھی کرتی ہیں جناب آپ جیسے شیطان کے اشاروں پر ہی کرتی ہیں. گناہ خود کرو اور سارا کا سارا الزام مجھ پہ ٹھہراؤ، یعنی کہ سارے گناہ تم لوگ کرو اور مجھے مجرم قرار دے دو. یہ اچھی شرافت ہے تم لوگوں کی. وہ اس لیے جناب کہ ہمارے ہر گناہ کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. میرا ہاتھ نہیں، آپ لوگوں کے خواہشات کا ہاتھ ہوتا ہے. خواہشات بھی تو آپ ہی بھڑکاتے ہیں، سارا قصور آگ لگانے والے کا ہی ہوتا ہے. آگ لگانے والوں کا تو ہوتا ہے، لیکن آپ جیسی خوبصورت بلائیں. آپ نے ہم خوبصورت لڑکیوں کو بلائیں کیوں کہا؟ بلا اس لیے کہا کہ آپ لوگ جہاں جاتی ہیں اپنے اداؤں سے بجلیاں گراتی ہیں، بھائی کو بھائی سے اور دوستوں کو دوستوں سے لڑاتی ہیں. تو یہ کرنے پر بھی تو آپ ہی ہمیں مجبور کرتے ہیں. میں نے اپنے چیلوں کے ہاتھوں میں تم لوگوں کی گناہوں کی لسٹ دیکھی ہے، جسے دیکھ کر میں حیران رہ جاتا ہوں. آپ ہمارے گناہوں کی لسٹیں دیکھ کر بھلا کیوں حیران رہ جاتے ہیں؟ اس لیے حیران رہ جاتا ہوں کہ جو گناہ تم لوگ کرتے ہو کہ وہ میرے ذہن کے تصور میں بھی نہیں آتا. ایسے ایسے گناہ کرتے ہو کہ میں ان کو دیکھ کر سرپرائز ہو جاتا ہوں. اچھا شیطان جی، یہ بتائیں کہ کون سا گناہ دیکھ کر آپ کو سب سے زیادہ سرپرائز ملتا ہے؟ کوئی ایک گناہ ہو تو میں تم کو بتاؤں.
मुझे तो हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर मस्जिद में, हर सरकारी अफसरान के दफ्तर में, हाँ हर महकमे में, हाँ हाँ। हर जगह सरप्राइज ही सरप्राइज मिलता है। तो यहाँ पर भी लोगों को आप ही गुमराह कर रहे होते हैं ना। ये मुझ पे इल्जाम है, मैं अकेला हूं, मैं इतने सारों को किस तरीके से गुमराही में लगा सकता हूं? आप अकेले गुमराह नहीं कर सकते, तो क्या आपके साथ आपके चेले भी होते हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए उनका ईमान खराब करते हैं और उन्हें गुमराह कर देते हैं? हाँ, हमारे चेले होते हैं, जगह जगह पर हमारे चेले हैं। आपके चेले यानी कि आपके शागिर्द जगह जगह मौजूद हैं? हाँ, जगह जगह मौजूद हैं और ये पूछने की जरूरत नहीं है, मुशाहिदे की जरूरत है। तुम खुली आंखों से देखो, हर जगह मेरे चेले नजर आएंगे तुम्हें। हमें मुशाहिदे से कैसे पता चलेगा कि आपके चेले किस जगह मौजूद हैं? जितने भी यहाँ सरकारी मुलाजमीन हैं हाँ। और उन मुलाजमीन के पीछे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं हम्म। और जो उनके पीछे हाथ है वो हमारे चेले ही हैं, सिर्फ देखने की बात है। वाह 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 शैतान जी, वैसे बड़े ही कम लफ्जों में आपने बहुत ही गहरी बात कर डाली है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस मुल्क से रिटायरमेंट ले लूँ और दूसरी दुनिया में जाके कहीं दूसरे लोगों को बहकाऊं और काम सरअंजाम दूं जाके। वो क्यों? शैतान जी, आप यहाँ से क्यों रिटायर होना चाहते हैं? जब हमारे से बड़े बड़े यहाँ मौजूद हैं तो फिर यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? मेहनत होती नहीं है, पड़े पड़े काहिल हो रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है? अरे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम सुस्त और काहिल हो गए, पड़े पड़े सोते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, बदहजमी हो गई है, पेट खराब हो गया हमारा, हम बिल्कुल काहिल हो गए हैं। इसी वजह से हम यहाँ से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो साफ साफ कहे ना, कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल फारिग हो गए हैं। हाँ, हम इतने फारिग हो गए कि हमारे जो बड़े बड़े शैतान वीलॉगर्स, टिकटॉकर्स, फेसबुकर जितने भी हैं उनकी वीडियो देख देख के हम वक्त गुजारा करते हैं। ये सारे फैमिली वीलॉगर्स जो काम हम करना चाहते हैं वो काम वो कर रहे हैं। इस वजह से हम बिल्कुल काहिल से हो गए हैं, हम बस यहाँ से जाना चाहते हैं। यानी कि आप इतने इस कदर फारिग हो गए हैं कि आपका कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता। अरे हम तो इतने फारिग हैं, इसीलिए तो तुम्हारे जब इंटरव्यू की कॉल आई तो पहली कॉल पे हम आ गए, हमने नखरे नहीं किए, क्योंकि यहाँ के लोग गुनाह में मसरूफ़ हैं और हम फारिग बैठे हुए हैं। अगर यहाँ के लोग 10% भी नेकियां करें तो हमारे को फुर्सत नहीं मिलती और फिर तुम्हें हम क़यामत से 2 दिन पहले इंटरव्यू के लिए वक्त देते। जो लोग जनाब, यहाँ जो लोगों को इफ्तारियां करवा रहे हैं, लोगों को हज और उम्रे पर भेज रहे हैं, लाखों की तादाद में इफ्तारियां करवा रहे हैं, क्या उनकी नेकियां, उनकी अच्छाइयां आपको नजर नहीं आती? खुदा की कसम, ये नेकियां नहीं, ये एक दूसरे से सबकत ले जाने पर एक दूसरे को दिखावे की वजह से ये नेकियां कर रहे हैं। अगर ये कैमरा और ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ये नेकियां 5% भी इस दुनिया में नहीं होती। क्या हज और उम्रे पर लाखों रुपए लगाकर जाना भी नुमाइश है? हज और उम्रे पे जाने वाले लोग पहले 20% दिखावा करते थे। जब से इंटरनेट, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें आई, ये खुराफात आई हैं, तो अब 100% लोग दिखावे के लिए हज पे जाते हैं, वहाँ जाके तस्वीरें खिंचाते हैं, वहाँ हज पे वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं। ये दिखावा नहीं तो क्या है? इबादत है। वैसे बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात रुसवाई की नहीं है, रोज़ा हशर बात पकड़ाई की है। रुसवाई तो छोटी सी चीज़ है। वैसे रमज़ान में उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बारे में क्या कहेंगे? ज़ख़ीरा अंदोज़ों को तो मैंने ऑस्कर अवार्ड, निगार अवार्ड, प्लेटिनम अवार्ड, पता नहीं कौन कौन से अवार्डों से नवाज चुका हूँ। हर अवार्ड ले चुके हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ इस मुल्क में। आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं, ये वीआईपी कैटेगरी के लोग हैं? वीआईपी नहीं, वीवीआईपी लोग हैं। वो तो वो हद पार कर चुके हैं जिससे मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है उनसे। उनसे भला आपको क्यों डर लग रहा है? तो उनसे इतना डर लग रहा है कहीं हमारे शैतानी का ताज हमारे सर से उतार के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के सर पे ना रख दिया जाए। और मुझे तो आपको क्या? अरे बताएं ना।
मुझे डिग्रेड करके उनका चेला बना दिया जाए और वो मेरे गुरु बन जाएं। ये आपके चेले इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि ये आपका हुक्म मानते हैं। मेरा हुक्म कैसे मानते हैं? आप जो उनके दिलों में वसवसे डालते हैं वो तो वही करते हैं ना। मैं उनके दिलों में वसवसे डालता हूँ? हालांकि कुरान शरीफ में ख़ास तौर पे खुले वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि शैतान के वसवसों से और शैतान से बहुत दूर रहो, उसके बहकावे पे मत आओ। तो फिर वो उन कुरान को नहीं मान के मेरे बहकावे में आके, उस वसवसे में आके क्यों ऐसी गलतियां करते हैं जिससे वो गुनाहगार हों? तो शैतान जी वो भी तो इंसान है ना, कोई फरिश्ते तो है नहीं कि आपकी बातें और आपके वसवसों में ना आए। मेरे बहकावे में आके अपने रब के नहीं मानता। सही। रब ने उसको सोच दिया, इख्तियार दिया, पूरी दुनिया में हुक्मरानी करने का एक राज दिया, लेकिन फिर भी वो रब की नहीं मेरी मानकर जहन्नम में ही जाएगा, उसको जन्नत तो नहीं मिलेगी कभी। आपकी ये सारी बातें ठीक है शैतान जी। मेरी सारी बातें ठीक है तो मुझ पे इल्ज़ाम तराशी करने से पहले अपनी इस्लाह करें, अपने गिरबान में झांकें, मुझको खुश करने के बजाय अपने अल्लाह को राज़ी करें। अगर तुमने ये नहीं किया तो मेरे गज़ब से और अल्लाह के अज़ाब से कभी भी बच नहीं पाओगे। बड़ी हैरत की बात है और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप लोगों को अच्छी इस्लाह कर रहे हैं और उनको नसीहत कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं जिसको इस्लाह कर रहा हूँ, जिनको ये नसीहतें कर रहा हूँ, उन लोगों ने कभी भी इस पर अमल नहीं करना है। आपको कैसे पता कि उन लोगों ने इस बात पर कभी भी अमल नहीं करना? जब मैं रमज़ान में कैद हूँ तो इस बात पे अमल नहीं कर रहे, जब मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो फिर कैसे इस बात पे अमल करेंगे? इसी बात पे मुझे हंसी आती है। चले इस बात पर तो हंसी बनती है, लेकिन और किस किस वक्त आपको हंसी आती है? जब हाजी हज पर जाते हैं और कंकरियां मारते हैं शैतान को तो मुझे हंसी आती है। तुम एक बात बताओ, मेरी रज़ा से और अपनी खुशी से जब वो गुनाह करते हैं और कंकरियां भी मुझे मारते हैं तो क्या मुझे हंसी नहीं आएगी? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल आपको हंसी आएगी और हंसी आनी भी चाहिए। तो कुछ छोड़ो, मैं अब खुलने वाला हूँ, बस 4-5 रोज़े रह गए हैं, चांद रात को मैं आज़ाद होऊंगा। फिर देखना जिन नमाजियों ने नमाज पढ़े हैं उन्हीं के हाथ में मावा, गुटखा, सिगरेट, शराब की बोतलें और दीगर चीज़ें होंगी। गाने बज रहे होंगे, जहाँ नाते सुनते थे वहाँ गाने सुनेंगे। जहाँ लोग अच्छी अच्छी बातें करते थे वहाँ फिल्में देखेंगे। वही नाच गाने, वही नंग धड़ंग, वही फैमिली व्लॉगर जो अभी अफ्तारी करा रहे हैं वो अपनी फैमिलियों को दिखा रहे होंगे। चांद रात, चांद रात एहतिकाफ में बैठे हुए लड़के मार्केटों में जाएंगे, लड़कियां छेड़ेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, बात सही है। वही गाने, वही ईद की मस्तियां, वही फिल्में, वही ड्रामे। शैतान में नहीं, शैतान आज का इंसान है। इंसान में छुपी हुई वो आदतें हैं, उसको जब तक खत्म नहीं करेगा शैतान यहाँ से नहीं जाने वाला। बिल्कुल। मैं तो 1 महीने सुकून से रहता हूँ, लेकिन मेरे चेले यहाँ काम कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। वैसे बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और हम फौरन से पढ़ लेते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। जी तो नाज़रीन, ला हौल वला कुव्वता पढ़ के तो हमने इस शैतान को यहाँ से रफू चक्कर कर दिया, लेकिन शैतान जाते जाते बहुत ही अच्छी बात कह गया कि जहाँ अभी नातों की आवाज़ें गूंज रही हैं वहीं से हमें गानों की सदाएं सुनने को मिलेंगी, नाच गाने होंगे, वही फैमिली व्लॉगर्स होंगे और डिफरेंट कंटेंट्स के साथ जो है वो हमारी जो आवाम है वो मसरूफ़ अमल नज़र आएगी। बस यही कहना चाहूँगी जाते जाते कि जो अमल आप रमज़ानुल मुबारक के इस बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से महीने में कर रहे हैं, उन तमाम ही अमल को जारी और सारी रखिएगा और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखिएगा और शामिल रखिएगा। चलते हैं इसी उम्मीद के साथ, ज़िंदगी बखैर रही होगी फिर मुलाकात। अपनी होस्ट महक नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।